Hello everyone, myself Nahid, and today I am here at Kalakriti, Kolkata, Kalakriti Nail Spa. So in case if you are eager to know what is permanent eyelash extension and if you want to learn what is it and how it's done, so today I am here, your coach, and I'm going to teach you step by step how we are going to enhance one person look through permanent eyelash extension. I would like to tell you about the Kalakriti Spa, what exactly they are into. They are basically a teaching hub in Kolkata. They do have a branch in Pune as well, and they do have a branch in Kolkata as well, and they do train people. So it's not like you need to buy a product then only they are going to teach you. It is something, if you want to learn first and later on you want to go for that product thing, you can go ahead for that. Okay, so having said that, so if I will tell you, if you want to learn like microblading, if you want to learn the permanent eyelash extension, if you want to learn airbrush makeup, or if you want to learn nail extension or nail art, all these things you can learn at Kalakriti, and it is going to charge you only 1999 rupees for the training session. As we all know, we all are under the lockdown, and nobody wants to take chance to go out and learn. So we are here to help you with the training session. Before you come out, you can spend your time at your place in your comfort zone, and you can learn whatever you want to learn in all those 4 subjects which I told you about: the nail extension, eyelash extension, microblading, and also a airbrush makeup, right? So you guys can connect Kalakriti for further information, and we will provide you rest of the information now. As are we live on Zoom? Okay, so already we have done yesterday a live session on Zoom and telling people that what is it exactly about the theory section. So today I am going to show you everything about permanent eyelash extension. There is a model in front of me already. I am going to do her lashes and I am going to enhance her beauty. Okay, so I will first show you guys how it is before look, and later on I will show you how it is after look. So you need to bear with me. Till then we will start. Thank you so much, and let's start. Okay, so before we go ahead, I would like to tell you everyone that there is a basic kit where we can provide you so many products, and you can do so many almost 3 times you can earn from that kit, and you can get training free of cost. Okay, so the product which we are providing in a kit, that is, the first product is this lash cleanser. Okay, so this lash cleanser is basically we use for the cleaning of the lashes. So this is very important to have this in your kit. Second product we have is hydrogel eye patch, which we use on our under eye section to hold your bottom lashes and to give you hydration on your under eye area. So this is again doing the dual thing. It's very good for you. Then the third product is what we are providing is this lash glue. Of course, this is the most important part. With this glue, we stick all the lashes one by one. Then there is a lash remover as well. Okay, so there is a remover through which you can remove all your lashes one by one, and it will only take 15 minutes of your time, and your client will be free from the fake lashes. Then we have these tweezers. There is a box of the tweezer which you will get. There are 2 tweezers inside it. The first one is the curve tweezer, which we use for volume thing to hold a lash fan, and second tweezer we have, this is used for the isolation, the straight tweezer, and it is also used for classic lashes, which I'm gonna do, and you will see how I'm gonna use it. Then we have this tape. This is doctor tape basically. So this tape we use it for holding your lower lashes, so it will not gonna hurt your lower lash at all, and it's not gonna take out your natural lash. It is very safe, and it is doctor friendly, skin friendly. Then we have this magnetic lash pad holder. Basically what it does, we do have couple of product inside it. There is a band, you can see, and there is a lash pad inside it. So the lash pad is definitely a magnetic lash pad. This is a lash pad where we have all the lashes. Okay, so we stick it on this part, and this is magnetic, so it will not move from its place. You can see how much I am doing like this. So these are the lash pad, and this is the band which we use on the head of the client. Again, it's under your comfort zone. We will give you certain training, and you will see how you have to use it. Then we give you these mascara spoolies.
which is basically you need to give this one part at least for client to comb their lashes. And then we use you get 20 pieces of each in this 30,000 rupees kit. Then we used to provide you these micro beads stick, if you can see, because this is the one which we use to remove your lashes, permanent lash extension. And this is use and throw stick. You should not use it on, you know, one stick on 2 clients. This is not hygienic. Then we provide you, last but not least, these 4 lash box. So first of all, we have this lash box which is C curls. There are 12 lines in it, and this is basically classic lashes, and you can do easily 10 clients from this one box, between 8 to 10 client based on the person how much you're wasting. But generally if there are 12 line, you can easily do 12 clients as well. It depends on you. Okay, so okay fine. So there are again यहाँ पे 4 बॉक्सेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं. इस बॉक्स में आपकी 12 लाइन आती हैं. 12 लाइन का मतलब है आप आराम से या तो 12 क्लाइंट आराम से कर सकते हो. अगर आप शुरू में नए हो तो आप 8 से 10 क्लाइंट एक बॉक्स में कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस बॉक्स, और इसमें 14 mm की लेंथ है. इसके बारे में हमने कल ऑलरेडी एक थ्योरी क्लास ली है. आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन आपके जब आप हमको इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे. एंड इसमें 14 mm की 12 लाइन्स हैं. देन दूसरा बॉक्स हम आपको जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. ठीक है. देन दूसरा बॉक्स आपका ये डबल सी कर्ल है, जिसमें आपकी मिक्स लेंथ होती है. 12 लाइन में 4 लाइन आपकी 8 लेंथ की होगी mm की, 4 लाइन आपकी 10 mm की होगी, और 4 लाइन आपकी 12 mm की होगी. इन द सेम वे हमारा थर्ड बॉक्स है सी कर्ल. इसमें भी आपकी मिक्स लेंथ है, जिसमें कि आपकी 8, 10 और 12 mm की लेंथ है. देन लास्ट हमारे पास एक डी बॉक्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. डी बहुत ही क्लासी और सेक्सी लुक के लिए होता है. ऑन द स्पॉट अगर आपको किसी की आईज को एकदम से अपलिफ्ट करना है तो आप डी कर्ल्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी 12 लाइन है अगेन, और 4 आपकी 7 mm है, 4 आपकी 11 mm है, 4 आपकी 13 mm है. ठीक है. सो ये लैश बॉक्स, ये जो 4 लैश बॉक्स आपको दिए जा रहे हैं इस किट में, आप आराम से इन 4 बॉक्स में मिनिमम 40 क्लाइंट सर्व करते हो. ठीक है. तो अगर आप 40 क्लाइंट्स कर रहे हो और आप 30,000 की किट ले रहे हो तो आप आराम से 1,20,000 रुपीज कमा सकते हो विद जस्ट दीज 4 बॉक्सेस, विच इज लाइक वेरी गुड डील फॉर ऑल ऑफ यू. एंड नाउ दिस इज द टाइम जब मुझे स्टार्ट करना है. और हाँ, आपको हम ये 2 चीज और देते हैं, जो कि ये है प्रैक्टिस लैश और दिस इज अ स्पंज. ये हम बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस में यूज करते हैं. आई एम सॉरी. सो ये बेसिक प्रैक्टिस में यूज होता है ओवरऑल. ठीक है. सो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट दीज एंड यू कैन सी कि हम बिफोर और आफ्टर में कितना रिजल्ट लाने वाले हैं. सो आई थिंक वी डन. वी कैन स्टार्ट विद दिस. सो सबसे पहले मैं ये लैश क्लेंजर लूंगी. ठीक है. ये लैश क्लेंजर अगर आप देखना चाहो. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं इस लैश क्लेंजर पे और इस पूली को अपने हाथ में लेके एक स्प्रे करूंगी. ठीक है. बस एक स्प्रे से मैंने इस पूली को पूरा लैश क्लेंजर में डिप कर लिया है. दिस इज द इजीएस्ट वे, जब आपका प्रोडक्ट फालतू वेस्ट नहीं होगा और ऑलरेडी इनके फेस पर, आंखों पे कोई मेकअप नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट्स को बेटर है अगर ये बोलें कि उनके फेस पे मेकअप ना हो. अगर वो मेकअप करके आए तो आपको क्लीन करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूंगी, इससे आप आंखें बंद करो, इससे मैं कोम करूंगी इनकी लैशेस को, जिसमें ऑलरेडी मेरा लैश क्लेंजर लगा हुआ है. और कम से कम ये 1-2 मिनट का टाइम लेगा ड्राई होने में. जब तक वो टाइम लेगा, इन द मीन टाइम हम बाकी की प्रिपरेशन कर लेंगे. ठीक है. ये लैश पैड है, जेल लैश पैड, जिसको अभी हम खोलेंगे और फिर इसको इनकी आईज के नीचे लगाएंगे. सबसे पहले मैं क्लाइंट को बोलूँगी आँख खोलने को. आप आँख खोलो अपनी, पूरी तरीके से खोलो, है ना. और फिर हम लोअर लैशेस को इसमें दबाएंगे और रिलैक्स करके रख देंगे. क्लाइंट को चुभना नहीं चाहिए, बहुत रिलैक्सेशन वाला काम है. आंखें बंद करो. चुभ तो नहीं रहा है कहीं कुछ? नॉर्मल है, रिलैक्स है. ठीक है. बंद कर लो. जब मैं बोलूँ तभी खोलना आंखें. ठीक है.
कुछ क्लाइंट्स ब्लिंक बहुत करते हैं, तो उस ब्लिंकिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको रिलैक्स करके रहने दो, वरना आंखों में पानी आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको एक और सिक्योर करेंगे थोड़ा अपने टेप से। फॉर दैट मैटर ये टेप लिया हमने, और इसके हम 3 पीसेस करेंगे। ऊपर आंख खोलो आप। अगर कोई बाल आपका बाहर आ गया है तो आप उसे ऐसे करके टेप से चिपका दोगे। एक टेप इधर लगाओगे डायगोनल, दूसरा इस साइड से लगाओगे। इनर कॉर्नर पे ज्यादा बोझ नहीं देना है वरना वो चुभता है, और एक टेप हम बीच में लगाएंगे। और इतनी टेपिंग हम इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज जब हम ट्वीजर यूज करेंगे तो क्लाइंट की स्किन को बिल्कुल चुभेगा नहीं। आंखें बंद करो, रिलैक्स है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है? परफेक्ट। क्लाइंट से पूछना बहुत ज़रूरी है कि उनको कहीं चुभ तो नहीं रहा है, अदरवाइज आपका लैशेस का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बार हमने शुरू कर दी तो हमें उनकी आईज नहीं खोलनी है जब तक कि प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता। सो ऊपर देखना। आपकी स्किन ऑयली है? नॉर्मल। ऊपर देखो, ऊपर देखो। ग्लव्स से मुझे बस इरिटेशन हो रहा है, बट वी हैव टू यूज इट। अभी ठीक है? चुप तो नहीं रहे? ठीक है, ठीक है। अब आंखें आप बंद रखनी है, आपको खोलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? स्टॉप ब्लिंकिंग एंड एवरीथिंग। एक और तरीका है, जब किसी की आंखें अंदर की तरफ जाती हैं ना, तो फिर हमको इस टेप के पतले पतले 2 साइज करने होते हैं। इतना पतला टेप काटना होता है, एंड देन उसको हमें आंखें बंद रखना, अपनी बंद रखो, ठीक है? कॉर्नर पे आंखें लेके और ऐसे उठा के लगाना होता है। उससे क्या होता है, हमारे आईज लैशेस हमें दिखने लगते हैं जो अंदर जा रहे हैं, ठीक है? और फिर एक हम ठीक है, ये देखो अभी ज्यादा दिख रहा है लैशेस ना, जो कॉर्नर से थे वो नहीं दिख रहे थे, अभी दिख रहे हैं। नेक्स्ट टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी आप अपना ग्लू यूज करते हैं तो मेक श्योर आप इसको 60 सेकेंड्स तक आपको इस ग्लू को शेक करना होता है, और वो भी हॉरिजॉन्टली, मतलब आपको वर्टिकल नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टली ग्लू को शेक करना है। एंड मैं इस पर ग्लू निकालूंगी। ओके, ठीक है। और जब भी ग्लू की बॉटल है, टिश्यू पेपर होगा यहाँ पे, आई नीड टिश्यू पेपर। कभी भी ग्लू की बॉटल बिना टिश्यू पेपर से क्लीन करे आपको वापस बंद नहीं करनी है, बिकॉज इससे आपका ग्लू और कैप वापस में चिपक जाएगा, विच इज़ अ बैड थिंग। सो आपको हमेशा ग्लू की नोजल एंड हर चीज़ बिल्कुल क्लीन करके रखनी है टू सेव योर प्रोडक्ट। एंड वी विल एयर टाइट दिस। ग्लू एयर में सूख जाता है, so we'll do it like this. This is my classic lash 12 mm. क्लासिक लैश का मतलब है मैं एक बाल पर एक ही बाल लगा सकती हूँ, और मैं इसको वापस से अंदर से डिप करूँगी और एक्स्ट्रा ग्लू क्लीन करूँगी, एंड देन आई विल स्टिक इट। तो अभी ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बाकी के सारे बाल अलग होने चाहिए, और हम इसको स्टिक करेंगे। अब जैसे ये ड्रॉप दिख रहा है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा रब करूँगी एंड देन आई विल स्टिक इट। और अगर तभी भी आपको एक्स्ट्रा ग्लू लग रहा है तो आपको छोड़ना है पहले ऐसे करके, एंड देन जब जैसे ही आपका बाल लग जाएगा आपको ऐसे करके ऊपर करना है ताकि वो स्किन में नीचे ना चिपके, ठीक है? सो दिस इज समथिंग, मतलब ठीक है, लग गया ये हमारा एक बाल। और अभी हम इसको टाइम देंगे सूखने के लिए। इन द मीन टाइम अब मैं दूसरी तरफ जाऊंगी और मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर में बिल्कुल भी नहीं लगाने आपको लैशेस, हमेशा आपको जगह करके लगाना है। तो आप क्लाइंट का सर घुमा सकते हैं, अपनी जगह नहीं मूव कर सकते हैं। एक सेकेंड, फोन ओपन करिए। सो यू नीड टू फाइंड दैट वन हेयर जिस पर आपको ये लैशेस लगाने हैं।
ये मिला मुझे एक बाल। ठीक है, आप थोड़ी देर इसको पकड़ के भी रख सकते हैं सो दैट वो होल्ड पकड़ लेना। और जस्ट बिकॉज मैं ट्वीजर यहाँ पर रखी हूँ, उनकी स्किन पे टच नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ग्लू ही सारा लैशेस के नीचे होल्ड कर रहा है। फिर मैं लूंगी एक बाल, अभी मैं एक एक बाल लगा रही हूँ, बीच में मैं इसको हाइब्रिड सेट बनाऊंगी। तो इनकी आंखों पे मैं पूरा एक हाइब्रिड सेट क्रिएट करने वाली हूँ। अगेन ये ग्लू जितना भी एक्स्ट्रा है उसको सब मुझे क्लीन करना है एंड देन आई विल फाइंड हेयर। और आपकी लैश की ग्रोथ जिस साइड में जा रही है आप उसी साइड स्टिक करोगे, ठीक है। ये सोने वाले मूड में दिख रही है मुझे। आपके क्लाइंट्स के लिए लैशेज एक वैसा टाइम हो सकता है रिलैक्सेशन वाला, बिकॉज ना वो बोल सकते हैं और ना वो, उसकी लेंथ ही इनकी 12 mm है। माइट भी कैमरा पे बिग लग रही हूँ, लेकिन अभी जब ये खोलेंगी आईज तब ये इसका बहुत ही ब्यूटीफुल विस्पी इफेक्ट आएगा। So the style which I am doing is wispy hybrid set. देखो इससे कोम करूंगी, ठीक है। तो इससे जो बाल नहीं लगे होते हैं, इधर उधर लग जाते हैं, बेस नहीं पकड़ते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है। फिलहाल जब ग्लू गीला हो तो अलाउ नहीं करते, बट अभी ऑलमोस्ट मैंने इतना कर दिया है कि कर सकती हूँ। तो उससे जो अंदर के बाल है उनमें कोम्ब हो जाता है, तो वो एक एक बाल अलग हो जाता है दोबारा से। ठीक है, तो आई कैन सी कि अभी मुझे कहाँ कहाँ फिलिंग करनी है। हाँ बिल्कुल, आपको रिफिलिंग करानी पड़ेगी, तो आप साल भर तक ये लैशेस चला सकते हो। हर 25 दिन पे आके आपको रिफिलिंग करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप लैशेस करवाने का 3000 या 5000 दे रहे हो तो रिफिलिंग का 1500 देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गेट इट डन। साल भर तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंसान साल भर तक एक सर्विस को करवा सकता है बार बार, आपको रिमूव करवाना ही पड़ेगा। सॉरी। आफ्टर केयर के लिए सबसे पहले तो लैशेस करवाने के 24 से 48 घंटे तक आपको कुछ भी पानी नहीं डालना है फेस पे। आप मेकअप वाइप से फेस क्लीन कर सकते हैं, कर सकती हैं। एंड इसके अलावा आपको उल्टा मुंह करके नहीं सोना है। एंड थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि आप अगर आई मास्क लगा के सोने की आदत है तो आई मास्क नहीं लगाना है। बस ये 48 घंटे की केयर है, और बाद में भी आप उल्टा होके नहीं सो सकते हैं। अगर आप लोग उल्टा होके सोएंगे कस्टमर होके और तो बाल निकलने के चांसेस हैं। और बस उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जब आप फेस क्लीन करते हैं तो आपका फेस पे आंखों पे प्रेशर नहीं डालना है। सिंपल, आंखों पे जितना कम प्रेशर डालेंगे फेस क्लीन करते वक्त उतना अच्छा होगा। और मस्कारा नहीं लगाना है इसके बाद आंखों पे, वरना क्लम्जीनेस आ जाएगी, उस पर क्लम्पी लगने लगेगा। एंड इसके अलावा आपको स्टीम और सोना बाथ सेम डे में नहीं लेना है। अगर आपने जिस दिन लैशेस कराएं उस दिन आप स्टीम और सोना नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मॉइस्चर आ जाता है। तो किसी भी तरीके का मॉइस्चर और ऑयली प्रोडक्ट बचाने हैं अपने आंखों के पास।
आई लैशेज आपका वीगन होता है जो हमारे पास है, इसके अलावा आपका मिंक लैशेज होता है जो कि आपके एनिमल हेयर से बनता है, एंड उसके अलावा सिंथेटिक होता है जो हमारे पास है। सो बेसिकली दो होते हैं, एक जो एनिमल की बॉडी से लिए जाते हैं और दूसरा जो बिना एनिमल के हेयर से बनता है, विच इज़ वीगन, एंड वी आर प्रमोटिंग राइट नाउ वीगन लैशेज। बिकॉज किसी को एनिमल हेयर से एलर्जी होती है तो आपके कस्टमर को रैशेज हो सकते हैं अगर आपने उनके बालों आइज़ पे एनिमल हेयर जो कि मिंक के नाम से भी जाने जाते हैं वो लगा दिए। तो बेसिकली 45 मिनट्स टू 2 आवर्स डिपेंड करता है कैसी लैशेस करनी है, क्या स्टाइल दे रहे हैं और क्लाइंट की डिमांड क्या है। अगर आप मेगा वॉल्यूम करेंगे तो 2 घंटे लग सकते हैं, क्लासिक करेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा, और हाइब्रिड वॉल्यूम सेट करेंगे तो कम से कम 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड आपके लैश के सेटअप के डिपेंड करता है। बिकॉज आपको जब लैशेस करना है तो आपका लैश सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए, उसी बेसिस पे आप कुछ कर पाते हो। नहीं, मेरी प्रैक्टिस हो गई इससे, आपको जो यूज़ करोगे ना उससे हो जाता है। मैंने बहुत सारे एक्चुअली ब्रांड में यू नो इस्टेब्लिश करने से पहले डिसाइड किया था, प्रैक्टिस बहुत सारी से करी है। अब धीरे से आंखें खोलिए। देखो जो नीचे चिपक रहा था ना वो हट जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर देखो ध्यान से, नहीं देख पा रहा? अच्छा रुको, आप अपने हाथ से ना धीरे से उठो और शीशे पे देख के ना धीरे से क्लीन करो।